গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আজকে আমরা একটা নেক্সট কোশ্চেন পড়ব এসএফডি বিএমডি রে। আর এই কোশ্চেনটা হবে আমাদের ইউডিএল এ, ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড। আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড বিমে আমরা পয়েন্ট লোডের জন্য দুটো কোশ্চেন করেছি, মানে দুটো নিউমেরিক্যাল আমরা সলভ করেছি। আজকে আমরা কি সলভ করব, আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম থাকবে আর একটা ইউডিএল থাকবে। ঠিক আছে, এটা আমরা আজকে দেখে নিব ফার্স্টে। ওকে, দেখে নিচ্ছি। ফার্স্টে আমরা কি করব, সব জিনিস সেম থাকবে। ফার্স্টে আমরা ক্যালকুলেট করব কি রিঅ্যাকশন ফোর্সটা, তো সেম হবে জিনিসটা। এখান থেকে রিঅ্যাকশন ফোর্সটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করব কি, যে আমাদের একটা কিছু দেওয়া থাকবে, যেটা এইখানে দেখো জিনিসটা কি দেওয়া আছে। ঠিক আছে, যে আমাদের কত ফোর্সটা একটু ভালো করে দেখতে হবে, ওর ইউনিটটা দেখে নাও ভালো করে। ইউনিটটা ফোর্সের ইউনিট এমনি বা লোডের ইউনিট কী হয়, কিলো নিউটন বা নিউটন হয়। এখানে কি আছে, কিলো নিউটন পার মিটার, মানে কতটা লেন্থে আমাদের ফোর্সটা বা লোডটা লাগছে ওই ভ্যালুটা দেওয়া আছে, কিলো নিউটন পার মিটার। এই কিলো নিউটন পার মিটারটা একদম ভালো করে মনে রাখবে। এই মিটারটা আমাদেরকে ক্যান্সেল করতে হবে যখন আমরা ক্যালকুলেশন করব। আলটিমেটলি আমাদেরকে ফোর্সের ইউনিট নিউটন বা কিলো নিউটন নিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে, তো আর এ আর আর বিটা আমাদের কি, আর এ আর আর বিটা আমাদের হলো রিঅ্যাকশন ফোর্স, যেটার ইউনিট হবে কি হবে, আর এ আর আর বির ইউনিট আমাদের হবে নিউটন বা কিলো নিউটন হবে। আর এখানে আমাদের ফোর্সের ইউনিটটা কি দেওয়া আছে লোডের, কিলো নিউটন পার মিটার। ওকে, ক্যালকুলেশন অফ রিঅ্যাকশন ফোর্সের জন্য আমি কি বলেছিলাম, যে যতগুলো আপওয়ার্ড ফোর্স লাগবে আপওয়ার্ড ডাইরেকশনে ফোর্স, আর যতগুলো ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশনে ফোর্স লাগবে সবটাকে ইকুয়াল করে দেবো। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা দেখে নিচ্ছি কি কি করে দেবো। ঠিক আছে, আমাদের এখানে কি কি লাগছে আপওয়ার্ড ডাইরেকশনে, আর এ আর আর বি দুটোর সাম হয়ে গেল, ইকুয়ালস টু কী হবে, যতগুলো ডাউনওয়ার্ড ফোর্স লাগছে। ডাউনওয়ার্ড কি লাগছে, একটাই ডব্লু। ঠিক আছে, ডব্লুটা তো হয়ে গেল। এখানে আমি এলটা ইনটু কেন করেছি, ডব্লুর ইউনিটটা কি, ডব্লুর ইউনিটটা হলো কিলো নিউটন পার মিটার, কিলো নিউটন। কিন্তু এখানকার এই যে আমরা এখানে দেখছি এইটা আর এ আর আর বি, এর ইউনিট কী হবে, কিলো নিউটন। কখনো দুটো ইউনিট প্লাস মাইনাস করতে গেলে ওর ইউনিট ইকুয়ালস টু সব সময় সেম হবে। বাট এখানে যদি কিলো নিউটন বা কিলো নিউটন প্লাস কিলো নিউটন করি, তো কি আসবে, ইকুয়ালস টু কিলো নিউটনে আসবে। বাট এখানে আমরা যে দেখতে পারছি এই জিনিসটাতে, দাঁড়াও, এই জিনিসটাতে দেখতে পাচ্ছি এর কি ইউনিট, এর ইউনিট কি কিলো নিউটন না কিলো নিউটন পার মিটার। তার জন্য এই কিলো নিউটন পার মিটারটাকে আমরা কিলো নিউটন বানানোর জন্য এখানে যত লেন্থে লাগছে ওটার মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, তো এর ইউনিট কি চলে আসলো, আর এ প্লাস আর বির কিলো নিউটন আসবে। তো একটা ইকুয়েশন তো এখান থেকে নিলাম। আর সেম সেম যেরকম আমরা আগে দিসের জন্য লিখছিলাম পয়েন্ট লোডের জন্য, সেম নিব একটা টেকিং মুভমেন্ট অ্যাবাউট এ ইকুয়ালস টু জিরো। এতে নিতে পারো আর বিতে নিতে পারো, তো আমরা এতে নিয়েছি। এতে জিরো যদি করি তাহলে বি দিক থেকে এই দিক থেকে দেখবো আমরা। ঠিক আছে, কি কি ফোর্স লাগছে এখানে, আর বি আর একটা ডব্লিউটা লাগছে। তো আর বি তো হয়ে গেল, আর বি ঠিক মুভমেন্ট করে দিলে আরবি ইন্টু আরবি ইন্টু এল হবে এখানে, আরবি ইন্টু এল ইন্টু এখানে কি হবে, এখানেও একটা এল হবে। ঠিক আছে, আরবি ইন্টু এল এখানে হবে, মুভমেন্ট নিচ্ছি টোটালটা, আরবি ইন্টু এল হবে। তারপরে সেকেন্ডটাতে ডাব্লু ইন্টু এল বাই টু হবে, এখানে একটা এলটা মিস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ইন্টু এল হবে এখানেও। কেন, একটা আমাদের মুভমেন্ট নিতে হবে। জিনিসটা যখন মুভমেন্ট নিব তো আমাদের ফোর্স ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স, এটা হলো ফোর্স আমার আরবি, পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স এল। তারপরে আমাদের কি বাচ্চা, এটা ডব্লুটা নিলাম, ওর সাথে কি একটা ইন্টু এল করে দাও টোটালটা। এই টোটালটা আমাদের ফোর্স বানানোর জন্য, এটা ফোর্স বানানোর জন্য এখানে এল ইন্টু হবে, এর সাথে একটা ইন্টু এল হবে, এল হলো। তারপরে কি, যখনই মুভমেন্ট নিব না, এই জিনিসটা ভালো করে মনে রাখবে, ইউডিএল এর জন্য পারপেন্ডিকুলার লেন্থটা সবসময় ওর মিড পয়েন্টে হবে। ইউডিএল এর জন্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্সটা আমরা কোথায় থেকে ক্যালকুলেট করব, কতটা নিব, সবসময় কতটা নিব, মিড পয়েন্ট থেকে নিব। ঠিক আছে, মিড পয়েন্ট। আমি কি করলাম, এখানে আর বি ইন্টু এল করলাম, এখানে ডব্লু ইন্টু এল তো হলো, ডব্লু ইন্টু এলটা এখানে মিস আছে, ডব্লু ইন্টু এল হলো। তারপর যে এই এলটা কিসের জন্য, এটাকে ফোর্স বানানোর জন্য। ডব্লুটাকে আগে ফোর্স বানাও, ফোর্সের ইউনিট তো কিলো নিউটন হবে, বাট পার মিটার আছে, পার মিটারটা ইন্টু করে দিলাম এল। তো এখানে ডব্লু ইন্টু এলটা অত দূর অবধি হয়ে গেল আমাদের ফোর্স ইন্টু পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স। ইউডিএল এর জন্য সব সময়
सब समय लेंथ बाय माने मिड पॉइंट होवे। अच्छा छेले लड़का लोग बोला था कि हिंदी में बोलिएगा। पहले हम लोग रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन फोर्स का क्या हो रहा है हम लोग का, आर ए जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उतना डाउनवर्ड फोर्स लगा देंगे, यहाँ से W इंटू एल कर देंगे, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद मूवमेंट ले लेंगे, किसी भी एक पॉइंट पे मूवमेंट लेंगे, ए या बी पे, ठीक है, मूवमेंट ले लिए। उसके बाद यहाँ से मूवमेंट क्या होगा, जिधर मूवमेंट जीरो करेंगे उधर ही देखेंगे हम लोग, उधर ही देखेंगे जहां मूवमेंट जीरो हुआ, और जितना पूरा मेरा जो बीम है वहां पे कितना सारा फोर्स लग रहा है उस पर मूवमेंट ले लेंगे। आर बी इंटू एल होगा, प्लस में हो रहा है क्योंकि ये अपवर्ड लग रहा है। उसके बाद हम माइनस ले रहे हैं क्योंकि ये डाउनवर्ड में लग रहा है, माइनस W इंटू एल होगा। W इंटू एल मेरा ये फोर्स हो गया, इंटू हमेशा UDL में जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मेरा मिड पॉइंट से होगा या फिर हाफ होगा हमेशा, तो L/2, यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, RB इज इक्वल टू WL/2। तो ये वाला इक्वेशन को क्या करना, यहाँ से ये वाला इक्वेशन में बैठा देना। एक नंबर इक्वेशन में, एक और दो नंबर इक्वेशन में RB का वैल्यू WL/2 को यहाँ पे बैठा देना, यहाँ से RA निकाल लेना, WL/2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा इजी है, कुछ है नहीं, ये मेरा हो गया रिएक्शन फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हम लोग क्या, शेयर फोर्स, ठीक है। शेयर फोर्स के लिए भी सेम वही, जैसे हम लोग एक सेक्शन लेते थे, सेक्शन ले लेंगे हम लोग, एक सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ दिखा दे रहे हैं आप लोग को सेक्शन कैसे लिया जाता है। दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक सेक्शन होता है, हम बोले थे एक एक्स सेक्शन ले लिया हम लोग, यहाँ पे एक्स सेक्शन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसको यहाँ से एक डिस्टेंस दे देंगे, कहीं से जहाँ से पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वहाँ से एक डिस्टेंस में ले लेंगे, ठीक है। तो शेयर फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, देखते हैं शेयर फोर्स हम लोग का क्या है यहाँ पे। शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन ए बी, सेक्शन ए बी के एलोंग लेंगे हम लोग शेयर फोर्स, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, SF(x) इज इक्वल टू RA। देख लीजिए क्या क्या लग रहा है, ये वाला सेक्शन में हम लोग का क्या क्या लग रहा है, ए बी सेक्शन में हम लोग का क्या क्या लग रहा है, पहले देखना पड़ेगा हम लोग को। ए बी सेक्शन में क्या क्या लग रहा है, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में मेरा RA लग रहा है ए बी सेक्शन में, ठीक है, ये पूरा सेक्शन में ए बी बोल रहा है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ये पूरा सेक्शन में तो हम लोग का ये R लग रहा है। हम बोले थे कि बी इंक्लूड नहीं करेंगे, जस्ट टच करना चाहिए बी पर, बी को लेंगे नहीं, इंक्लूड नहीं करेंगे बी पॉइंट से जस्ट पहले थोड़ा सा, जस्ट पहले, तो हम लोग का RA लग रहा है और W लग रहा है, ठीक है, ये दोनों फोर्स लग रहा है, तो दोनों कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग का क्या क्या लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से SF(x) अगर लिखे तो अगर हम अपवर्ड अगर पोजिट पकड़े तो W किधर लग रहा था, ये इधर लग रहा था, इंटू WX, ठीक है। WX क्यों इंटू कर रहे हैं, देखिए जब भी हमको पहले W को फोर्स बनाना पड़ेगा, जब फोर्स बनाएंगे तो जितना डिस्टेंस में हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे उसी से हम लोग इंटू करेंगे, ना कि पूरा L से। यहाँ पे हम लोग कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ X पोजीशन तक, सिर्फ X पोजीशन तक ही कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी वजह से W को फोर्स बनाने के लिए हम लोग को X से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि L से। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या किए हैं, W को X से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से W का वैल्यू, यहाँ से SF(x) का वैल्यू आ गया RA माइनस, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ये, माइनस WX। X समझ में आया, क्योंकि W को हमको फोर्स बनाना है, अगर फोर्स नहीं बनेगा तो इसका यूनिट अलग होगा, क्योंकि ये यूनिट, इसका यूनिट RA का यूनिट क्या है मेरा, किलो न्यूटन या फिर न्यूटन, माइनस W का यूनिट तो किलो न्यूटन पर मीटर था, मीटर पर मीटर को कैंसिल करने के लिए हमको वो जो डिस्टेंस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका यूनिट किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग को कैलकुलेट किया जाए, अगर हम लोग को दो पॉइंट पे ही कैलकुलेट करेंगे RA, जैसे कि हम लोग का A पॉइंट पे और B पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग A पॉइंट पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जब X इज इक्वल टू 0 होगा, देख लीजिए वही सेम प्रोसेस है, प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ से देख लीजिए ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट पे हम लोग का आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0, और अगर x को हम लोग एक्सटेंड करा के b पॉइंट तक लेके जाए तो x का वैल्यू l हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। जब x का वैल्यू 0 करेंगे तो RA तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे x के जगह 0 कर दीजिए, RA रह गया और यहाँ पे W इंटू 0, तो ये वाला वैल्यू तो 0 हो गया, और RA का वैल्यू क्या है, WL/2 बस। तो हम लोग का A पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आ गया, WL/2। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट B
करेंगे जब x इज इक्वल टू एल हो जाएगा। तो आर ए का वैल्यू तो हम लोग WL/2 रख दिए और माइनस W इंटू एक्स के जगह क्या लिखे हम लोग L। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस WL/2। यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला हम लोग यहां से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्या आता है। देखिए ये पॉइंट मेरा ये है, ये और ये अगर सी मान लीजिए बी, ये सी पॉइंट है और ये हम लोग का बी पॉइंट है। ए पॉइंट पे हम लोग का शियर फोर्स कितना है देख लेते हैं। ए पॉइंट पे शियर फोर्स कितना है हम लोग का, ए पॉइंट पे शियर फोर्स WL/2 पॉजिटिव है, WL/2 है। ठीक है, तो हम लोग कुछ पकड़ लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू कुछ है WL/2। ठीक है, तो यहाँ पे WL/2 हो गया। उसके बाद सी पॉइंट पे हम लोग को कोई वैल्यू नहीं मिला है। उसके बाद हम लोग को मिला है बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे था माइनस WL/2 था वैल्यू। ठीक है, तो जितना L/2 था पॉजिटिव उतना ही ये वाला वैल्यू सेम होगा। ठीक है, ये थोड़ा अंदाज रखिएगा, ये वाला वैल्यू जितना होगा इतना वैल्यू इतना होगा। और हम शेप सब जब शेप पर आए थे कि SFD और BMD का शेप कितना कैसा होगा, तो हम बढ़िया से बोले थे कि जब UDL होगा, UDL में हमेशा SFD ट्रायंगुलर शेप का या लीनियर शेप का होगा, ट्रायंगुलर या फिर लीनियर शेप। एक पॉइंट यहाँ मिला हमको और एक पॉइंट यहाँ मिला, तो दोनों पॉइंट को हम लोग टच करके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव वैल्यू होगा, ये वाला नेगेटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, ये वाला नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, ये वाला नेगेटिव कर लीजिएगा, ये वाला वैल्यू नेगेटिव होगा। तो नीचे की तरफ हमेशा नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव लिखा होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक, BMD भी देख लेते हैं हम लोग। BMD कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं है, सेम जैसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे उसमें भी इसमें भी वही कैलकुलेट करेंगे। BMD कैलकुलेशन में हम लोग का BM@x माने बेंडिंग मोमेंट x अगर करें तो ऊपर की तरफ हम लोग का फोर्स क्या लग रहा था, RA लग रहा था, इंटू एक्स कर दिया। उसके बाद माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा था माइनस दिए, W इंटू एक्स, ये तो फोर्स बन गया टोटल मेरा। ठीक है, W इंटू एक्स ये मेरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस UDL के लिए हम क्या बोले थे, हमेशा मिड पॉइंट तक ही होगा, हमेशा मिड पॉइंट। जब हम लोग मूवमेंट निकालेंगे उसका बात कर रहे हैं हम, जब मूवमेंट निकालेंगे, जब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ जो W है उसको हम फोर्स बनाएंगे, उसमें हम मूवमेंट नहीं लेंगे। मूवमेंट जब लेंगे तब उसका क्या डिस्टेंस होगा, हाफ ही होगा। उसका डिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका हाफ होगा। जो सेक्शन में हम लोग कैलकुलेट करेंगे उस सेक्शन का वैल्यू, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हाफ होगा। तो यहाँ से x/2। ठीक है, तो हम लोग 2 पॉइंट में कैलकुलेट कर लेंगे। एक तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, जब x का वैल्यू 0 करेंगे, अगर दोनों जगह x का वैल्यू 0 कर दिए तो 0 आएगा। एट बेंडिंग मोमेंट b का मतलब होता है x को l के बराबर कर देंगे, तो WL/2 RA का वैल्यू इंटू एक्स के जगह l और माइनस W इंटू l रखे और x के जगह l रखे, L/2, दोनों वैल्यू सेम है, 0 हो जाए। हम ऐसे भी बोले थे कि जहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि ये वाला पॉइंट पे कोई बेंडिंग मोमेंट होगा, ये वाला पॉइंट पे कोई बेंडिंग मोमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस ही नहीं है। अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं कि ए और बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। ठीक है, और एक चीज और भी बोले थे हम कि BMD कैसा होता है, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। BMD कैसा होता है UDL में, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है तो BMD कैसा होता है। हम बोले थे, बढ़िया से देखिएगा खाता में, पहला क्वेश्चन जो दूसरा क्लास में पढ़ाए थे कि शेप्स ऑफ SFD BMD। तो BMD UDL के लिए हमेशा पैराबोलिक शेप होता है। तो एक पॉइंट पे 0 हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का पैराबोलिक होता है, ऐसे पैराबोलिक हम लोग बना लेंगे। और ये जो WL/2 ये होमवर्क देंगे, नेक्स्ट डे हम कराएंगे, देखते हैं कितना बच्चा कर पाता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा एक UDL में, अगर W और लेंथ और फोर्स दिया हुआ रहे हम लोग को। तो ये आप लोग का ये है होमवर्क है, कुछ हिंट्स दे देते हैं आप लोग को कि कैसे कैलकुलेट करना है बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या करना है, सब बता दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये बेंडिंग मोमेंट का मेन इक्वेशन ये वाला है मेरा, ये वाला है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जहाँ पे मेरा लेंथ हाफ हो जाता है, क्योंकि हमेशा
एक्स को कहाँ से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू, मिड पॉइंट पे ही होगा, मिड पॉइंट पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। इसी वजह से इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट जब एक्स, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब x इज इक्वल टू एल बाई टू होगा। ए वाला पॉइंट पे रखिएगा, देखिएगा वैल्यू आएगा कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 आएगा ए वाला वैल्यू। ये रहा होमवर्क, देखते हैं कितना लड़का कर पाता है। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।